مسیح خداوند کا بے بیان فضل اور وہ اطمینان جو انسانی سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ سب کی روحوں میں بڑھتا ہی جائے، آمین۔ زبور 81 آیت نمبر 10 پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں، کیا لکھا ہے؟ جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے تو اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ کلام کے وسیلہ سے باپ ہم سبوں کو برکت دے۔ یاد رکھیں عزیزو، خداوند ہر کسی کو برکت دینا چاہتا ہے، خداوند ہر کسی کو نجات دینا چاہتا ہے، خداوند ہر کسی کو روح القدس انعام کے طور پر دینا چاہتا ہے، خداوند ہر کسی کو عالم بالا کی برکتیں اور زمین کی نعمتیں دینا چاہتا ہے، بشرطے کہ جو آج کلام ہم سننے کو ہے اس پر وہ زندگی عمل کر لیں۔ میں 3 ریفرنس تو بہت ہی ہم پڑھ کر کلام کے حصے کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن میں 3 یا 4 ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 2 پہلی آیت سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے ان سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی۔ پھر انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا، اور پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر ان سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھٹ گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک۔ اس کلام کے حصے کی باقی تفسیروں کو ہم سب جانتے ہیں، میرا جو مضمون ہے میں اسی پر رہوں۔ سب سے پہلے مقدسہ مریم کا اقرار کہ ان کے پاس میں نہیں ہے، ان کے پاس میں ختم ہو چکی ہے۔ پھر دوسری بات، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی قدرت ظاہر کرتا، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اپنا جلال ظاہر کرتا، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اس مٹکے میں بھرے ہوئے پانی کو اپنی قدرت سے میں بدل دیتا، یہ سب کچھ ہونے سے پہلے 2 کام ہوئے، اقرار اور مٹکوں کا خالی ہونا۔ اگر میری اور آپ کی زندگی، اگر وہ زمین پر کسی کی زندگی میں بھی اقرار ہے کہ خداوند میں خالی کرتی ہوں اپنے آپ کو، میں خالی کرتا ہوں اپنے باپ کو، میرے اندر اب کچھ بھی نہیں، خداوند آپ کی زندگی کو بھر دے گا۔ جیسے اس نے مٹکوں کو بھرے ہوئے پانی کو برکتی بدل دیا، قدرت دکھائی، آپ کی زندگی میں بھی وہ قدرت دکھانے کو ہے۔ بشرطے کہ کیا لکھا ہے، ان میں
गुंजाइश थी। गुंजाइश पैदा करिए अपने अंदर, निकालिए नफरत, निकालिए झूठ, निकालिए जुदाई, निकालिए हसद, खाली करे अपनी जिंदगी को उन मटकों की तरह बिल्कुल खाली करे। उन मटकों के अंदर कुछ भी नहीं था। लिखा है उन मटकों में 2-2, 3-3 मन पानी की खाली थे। जब तक मैं और आप और कोई भी जिंदगी अपने आप को मुकम्मल तौर पर खाली नहीं करती, खुदावन उस गंदगी को धोना चाहता है। खुदावन चाहता है इंसान तौबा करे, इंसान अपनी उन सारी खताओं को, गलतियों का इकरार करे और पास आए, ताकि मैं अपनी कुदरत इस बर्तन में भर दूं, ताकि मैं अपना जलाल इस मटके से, इस जिंदगी से क्या करूं, जाहिर करूं। क्या लिखा है? अरे बदल गया पानी, खुदावन की कुदरत से वो पानी बदल गया। और क्या लिखा है? वो मैं बन गया। और जब मेरे मजलिस ने पिया तो कहता तूने वो मैं जो अच्छी है अभी तक रख छोड़ी है। अगर मैं और आप और जब हुए जमीन पर कोई भी जिंदगी अपने आप को खाली करती है, जब खुदा की कुदरत, यीशु मसीह की कुदरत हमारी जिंदगी में काम करती, उसका तलाब हमारी जिंदगी में होता, उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में होती, आने वाला की बरकतें हमारी जिंदगी में होती है, तब तेरी और आपकी जिंदगी दूसरे के लिए बरकत का बायस है। मत के कि मैंने उस मेरे मजलिस के दिल में खुशी को भर दिया, तब मैं और आप भी दूसरों के लिए बरकत का बायस होंगे। कब होंगे? जब अपने आप को खाली करें। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए जीरो किताब मुकद्दस में से दूसरा सलाती उसका बाब नंबर 4 पहली आयत से बयान शुरू हो रहा है। हालेलुया। पहली आयत से बयान शुरू हो रहा है। बड़े कोई बस अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से कहा, को गौर से सुना, कर दिया मेरा खादम मर गया, देखो खुदा परस्ता। और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था, खुदावन से डरता था। तो अब आया है कि मेरे दोनों बेटे, अब तो वो नहीं रहा, लेकिन मैंने कर्ज देना है और कर्ज वो आया है। सुनिए, ईसा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास एक प्याले तेल के अलावा कुछ भी नहीं। इकरार करिए, खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, मैं खाली करती हूँ अपनी जिंदगी, मैं खाली करता हूँ अपनी जिंदगी। ताकि मेरे पास थोड़ा सा तेल है और कुछ भी नहीं। फिर देखिए खुदावंद की कुदरत। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन सब हमसायों से ले आ बर्तन, और बर्तन थोड़े ना लेना, क्योंकि खुदावंद की कुदरत बड़ी अजीम है। खुदावंद बड़ा अजीम है। उसका आसमान, उसका खजाना ना कभी खाली होता है, ना कभी कम पड़ता है। तू बर्तन टांग तेरी ना रह गई तो तेरी बर्तन पर जान दे, ज्यादा नहीं बर्तन, बहुत ज्यादा बर्तन लेके आना। सुनिए, फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। तो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे।
लाते जाते थे और वो अंधेर और वो अंधेर हो जाती थी। दी जाती थी। जब वो बर्तन भर गए जब वो बर्तन भर गए, तो उससे अपने कैसे भर गए? खुदावन की कुदरत से क्यों भरे? उस औरत के इकरार पर कि मेरे पास कर्ज को देने के लिए कुछ है नहीं, उसने अपने आप को जाहिर किया, मेरे पास कुछ भी नहीं, खाली किया। खुदा के बंदे को कहा मेरे पास है नहीं कि मैं कर्ज खा सकूं। उसने कहा देख फिर तेरा ईमान, तेरा इकरार, तेरा अपने आप को खाली करना, और खुदा की कुदरत देख, ले आ बर्तन सारे जितने तू ला सकती है, पड़ोस पड़ोस से सब बर्तन ले आ, और थोड़े ना लाना, सब लेना। और कोई खाली रहा? क्या सीखा? खुदावन आपको भी बरकत देना चाहता है और आपके घर की चीजों को भी भरना चाहता है। खुदावन आलमे वाला की बरकतें भी देना चाहता है और जमीन की नेमतें भी देना चाहता है। खुदावन आपको अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और आपके घर में भी चाहता है कि हर एतबार से सरफराजी कब होगा? जब खाली करे, जब खाली करे। हालेलुया, हालेलुया। जैसा उनका लिए किताबें मुकद्दस लूका की इंजील बाब नंबर 19 पहली आयत से बयान शुरू हो रहा है। पढ़िए, गौर से सुनिए जिंदगी का तनाव। और यीशु में दाखिल होकर जा रहा था। वो जा रहा था। कौन जा रहा था? यीशु जा रहा था। और देखो कई नाम एक शख्स जो महसूल लेने वाला था और दौलतमंद था। गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। ऐसे कहीं नीचे उतरा, मुझे तेरे साथ तेरे घर में जाना जरूर है। सुनिए आगे। हालेलुया। वो तो एक गुनाहगार शख्स के पास जा उतरा है। और ज़िकई ने क्या कहा? ज़िकई ने क्या किया? आप सुनिएगा उनसे। ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, खाली करता हूँ अपना, जो मैंने नजायज कमाया है वापस करता हूँ, खाली करता हूँ अपनी जिंदगी। देख अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का नाहक खा लिया है चौगुना वापस करता हूँ, खाली करता हूँ अपने आप को। कब निजात आई? जब उसने खाली कर दिया, जब उसने कहा खुदावन, क्योंकि वो बहुत दौलतमंद था, उसने अंदर उसका जानता था कि ये सब मैंने नाजायज तरीके से कमाया है, इसलिए मेरे पास निजात नहीं, इसलिए मेरे पास हमेशा की जिंदगी नहीं। खुदावंद ने उसके इकरार पर और उसके खाली करने पर क्या कहा? आज इस घर में कब आई? जब उसने अपने आप को खाली किया। कहता आधा माल गरीबों को देता हूँ, आधा जो मैंने नाहक किसी का कमाया है उसका 4 गुना वापस करता। खुदावंद ने भी ऐलान कर दिया, खुदावंद ने भी अपनी कुदरत ज़ाहिर की। हाँ, आज इस घर में निजात आई है। खुदावंद हर किसी को निजात देना चाहता है। खुदावंद हर एक बर्तन को भरना चाहता है। खुदावंद
हर एक जिंदगी को बरकत ठहराना चाहता है, बशर्ते कि जिंदगी इकरार करे और अपने आप को खाली कर दे, उन बच्चों की तरह, उन बर्तनों की तरह और कई की तरह कि खुदावन जो कुछ मैंने गलत किया मैं उससे तौबा कर, खुदावन आइंदा नहीं करती और अपने अंदर पहले वाला निकाली और बर्तन को, ताकि जो कुछ भी आए वो पाकीज़ा, वो खुदा का कलाम, वो नूर की बातें, वो जिंदगी की बातें, वो जब चश्मे से मेरे और आपके और किसी भी ईमानदार की जिंदगी में आए तो फिर जैसा यीशु ने कहा उसमें से नदियां जारी हो जाएंगी। फिर ऐसी खुदा की कुदरत हो कि मेरे अंदर जो है वो नदियां बनकर दूसरों को बसरा। जब कोई जिंदगी अपने आप को खाली करती है तो फिर खुदा अपनी कुदरत होता है। जरूरत है कि हम अपने आप को खाली करें, जरूरत है हम खुदावन की कुदरत के लिए इस बर्तन को खाली करें। अगर मैं और आप चाहते हैं मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का नूर हो, खुदा का कलाम हो, मैं दुआ को बन जाऊं, मैं कलाम सुनाने वाला बन जाऊं, मैं कलाम सुनाने वाली बन जाऊं, मैं बरकत बन जाऊं, मेरी जिंदगी में खुदा यीशु नजर आए, मेरी जिंदगी में खुदा की कुदरत नजर आए, कहें हाँ खुदावन मैं तो चाहती हूँ, मैं तो चाहता हूँ, मैं दुआ करूं लोग शफा पाए, खुदावन मैं तो चाहता हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि खुदावन मैं तेरे कलाम की खिदमत करूं, तेरे खिदमत मुझ पर फैसल। क्या अगर मुझ में कोई कमजोरी है तो उस पर गालिब आ जाए। और खुदावन अगर अभी तक मेरी जिंदगी में कुछ और चीज जिसके सबब से मैं बाप बरकत नहीं, तो खुदावन आज खाली कर। फिर देखिए खुदावन, फिर देखिए खुदावन का कमाल, आपकी जिंदगी बरकत हो जाएगी और जब आपसे लोग मिलेंगे तसल्ली पाएंगे, खुदावन का इकरार करेंगे। देखो ये तो फजल हो गया, एली जे झूठ बोलदा, एली जी झूठ बोलदी, ये दुआ करने वाली जे, ये दुआ करने वाला है, ये कलाम की खिदमत करदा है, ये भैणा दी मीटिंग च कलाम सुनाती, फिर ये सब कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले अपने आप को खाली करना, तब खुदावन मटके में भरे पानी को मैं बना देगा, तब खुदावन उस खाली बर्तनों में तेल भर देगा, रूहुल कुद्दस भर देगा। आज का दिन निजात का दिन है, आज का दिन रहाई का दिन है, आज का दिन मखलसी का दिन है, आज का दिन सरफराजी का दिन है, आज का दिन तरक्की का दिन है। हम अपनी जिंदगी को पूरे तौर पर खाली करें और खुदावंद के जलाल के लिए आमीन। आज के कलाम के वसीला से बाप हम सबों